Hello students. So now we are going to study the next part of Carnot engine or a concept that is called as refrigerator. So after heat engine we have the next concept that is called as refrigerator. Now similar to refrigerator we have something also called as heat pump. Heat pump. Basically both are different. ये दोनों अलग अलग है but heat pump का mechanism and refrigerator का mechanism both are opposite. Means refrigerator क्या करेगा, जो आपका आउटपुट है उसको ठंडा करेगा, whereas in case of heat pump में क्या करते हैं, जहाँ पे हमको means in a particular region if you want to heat that region, तो यहाँ पे just means mechanism wise both are opposite but I can say the funda and working of both are similar. So refrigerator, what is refrigerator? Refrigerator is nothing but I can say this is the Carnot heat engine. Carnot heat engine working in reverse manner. Carnot heat engine working in reverse manner. Working in reverse manner is called refrigerator. What is refrigerator? Carnot heat engine working in reverse manner is called refrigerator. इसका मीनिंग क्या है? Means if we talk about heat engine में exactly में क्या होता है? So in case of heat engine we have something called as source. Okay, we have something called as what? Source, and we have heat engine in cyclic process, heat engine. Okay, then here I have what? Sink, source and sink. हाँ, तो इसमें क्या होगा? From source at higher temperature, okay, heat is taken by its heat engine, and amount of that heat engine means we can say part of that heat taken from source will be converted into work, and remaining heat is given back, or we can say remaining heat is extracted to the environment. तो environment में remaining heat को supply कर देते हैं. ऐसा किसमें करते हैं हम? heat engine. And here sink is at temperature T2 and here T1 will be greater than T2. ऐसा किसमें होता है? heat engine में. Whereas in case of refrigerator में क्या होगा? Here the funda is, suppose this is the chamber inside the refrigerator. मीन्स ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का चेंबर है, ठीक है, ये अंदर का चेंबर है जिसको मुझे क्या करना है? कूल करना है, ठंडा करना है. मीन्स सपोज अगर मार्केट से मैं पेप्सी लेके आया है, पेप्सी को मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, अब मुझे उसको ठंडा करना है, तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ से क्या होगा? मीन्स हीट एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, हीट यहाँ से निकाल के इसको ठंडा करना है अपने को. सो आई कैन से दिस इज कोल्ड रिजर्वॉयर, इसको ठंडा करना है. नाउ फ्रॉम हियर हीट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है. तो ये जो अपना रेफ्रिजरेटर है, दिस रेफ्रिजरेटर ये ऑटोमेटिकली कोल्ड रिजर्वॉयर से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है. एक आपको बात ध्यान में रखना है, वी नो कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट इफ वी विश टू flow heat from lower temperature to higher temperature, then we have to do some work. Without work, heat can never flow from lower temperature to higher temperature. तो lower से higher पे नहीं जाएगा. Suppose ये अपना lower temperature है. And just not to get confused, I am taking this as a T2, ठीक है, तो ये अपना T2 है, cold reservoir. बहुत सारे बुक में यहाँ पे उसको T1 भी लेते हैं, but T1 T2 में you will get confused according to me. That's why I am taking this as T2. Otherwise आप T1 लेके भी सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला में क्या होगा? फॉर्मूला विल बी एज सिमिलर ही रहेगा, बट T1 विल बी रिप्लेस्ड बाय T2 लाइक दैट. सो दिस इज कोल्ड रिजर्वॉयर से क्या होगा? यहाँ से हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड Q2, ओके, एंड बट वो अपने आप तो होगा नहीं, मीन्स वी हैव टू डू सम वर्क. तो इसके लिए हमको जो भी वर्क करना पड़ेगा, दिस इज द एक्सटर्नल वर्क which is done by the compressor of the refrigerator. तो जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है वो ये वर्क करेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो ही कंप्रेसर वर्क करेगा एंड वो
कोल्ड रिजर्वायर से, मीन्स फ्रिज के अंदर का पार्ट है वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड दैट हीट विल बी गिवन बैक टू व्हाट, टू द एनवायरमेंट. तो ये अपना आई कैन से कि दिस इज द हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर. तो हॉट रिजर्वायर को हीट एक्सट्रैक्ट करके दे देगा बाहर, दैट इज Q1. ओके, सो दिस इज Q1, this is cold reservoir, this is hot reservoir, this is work done, this is external work done, W. Let's say this hot reservoir it is at what temperature T1. और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली कहाँ क्या क्या होने वाला है, तो ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी, वर्क डन कौन करेगा, तो दिस वर्क डन कौन करेगा, ये कंप्रेसर. तो ये आपका कंप्रेसर करेगा कभी, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो हियर दिस इज रेफ्रिजरेटर, दिस इज कंप्रेसर विच विल डू वर्क डन. एंड जब ये कंप्रेसर चालू होगा देन ये अपने फ्रिज के अंदर का मटेरियल है, फ्रिज के अंदर का पार्ट है, मीन्स आई कैन से दिस इज इवेपोरेटर. इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेटर. इवेपोरेटर, ठीक है. तो ये अपना है इवेपोरेटर, वो आएगा सॉरी इवेपोरेटर. तो दिस इज इवेपोरेटर मींस आई कैन से पोर्शन इनसाइड रेफ्रिजरेटर. जो रेफ्रिजरेटर के अंदर होगा जिसको मुझे कूल करना है, तो वहां से क्या करेगा, जब ये कंप्रेसर चालू होगा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, देन यहाँ से ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा. तो सपोज जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है दिस इज Q2, कंसिडर क्या आएगी Q2. नाउ दैट हीट, अभी आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के पीछे मीन्स फ्रिज के पीछे अगर हम देखें, इवन एसी जो चलता है उसके पीछे भी फाइनली आउटपुट में क्या जाता है, एक वाटर, पानी बाहर आता है ऐसे. तो ये जो अपना आई कैन से दिस विल बी सराउंडिंग, यहाँ पे जो हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर इज नथिंग बट क्या, कंडेंसर. ये अपना क्या होगा, कंडेंसर. तो कंडेंसर क्या करेगा, जो भी हीट आएगा इट विल गेट कंडेंस एंड फाइनली इट विल कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो वाटर के फॉर्म में बाहर आ जाता है लाइक दैट. तो ऐसे अपना कुछ क्या काम करता है, रेफ्रिजरेटर. ओके, रेफ्रिजरेटर. सो हियर द मैकेनिज्म वाइज दिस इज रिवर्स है ये. तो यहाँ हॉट से कोल्ड की तरफ आ रहा था, यहाँ कोल्ड से हॉट की तरफ जाएगा. इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द कार्नोट हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स मैनर. कार्नोट हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स मैनर. सो हियर व्हाट इज Q2 का मीनिंग क्या है, हीट extracted from the cold reservoir. Heat extracted from the cold reservoir. Heat extracted from cold reservoir. What is Q1? Heat given to hot reservoir. Heat given out to hot reservoir. And here W is the external work done. W is what? External work done. W is external work done. Okay. Now समझ में आ गया अपोजिट कैसे है. Now here I can say कि with the help of first law of thermodynamics, अगर हम first law of thermodynamics देखेंगे तो according to first law of thermodynamics I can write heat supplied is equal to work done is equal to net work done plus delta U. Okay, but this is cyclic process. So in case of cyclic process we know delta U will be 0. So if delta U will be 0, it means Q net heat supplied that is equal to net work. Net heat supplied that is equal to net work. And if we see net heat supplied क्या होगा, तो यहाँ से कितना heat extract कर रहा है Q2, यहाँ बाहर कितना जा रहा है Q1. Means this will be something like this कि ये जो अपना है, suppose if this is 60, let's say example 60 joule, इसने कितना वर्क डन किया 40 joule. So this 60 40 and this will become what 100. So I can write कि जो वर्क डन है नेट वर्क ही क्या है अपना, नेट हीट. So that is equal to Q1 minus Q2. बहुत सारे बुक में आपको मैं वापस बोल रहा हूँ ये Q2 minus Q1 भी लिख के दिया होगा, बट वहां पे वो लोग क्या करेंगे, Q2 इसको कंसिडर करेंगे, Q1 इसको कंसिडर करेंगे. Are you getting my point? This they will consider Q1, this as a Q2, then they will write Q2 minus Q1. But not to get confused, you can write
मीन्स जैसा हीट इंजन में वैसे यहाँ भी आप समझ सकते हो. तो क्यू नेट इज इक्वल टू वर्क डन, नेट वर्क डन, दैट इज इक्वल टू Q1 minus Q2. Okay, now we have something called as, in case of refrigerator, we define there is something called as COP value, that is called as coefficient of performance. Coefficient of performance. Coefficient of performance, that is called as what? COP. COP, that is beta. COP, that is beta. So beta is defined in case of refrigerator. अब ये COP क्या है? तो COP means basically this will give an idea about the quality of refrigerator. Means how means in what manner it is colding that part. Means जो रिजर्वायर के अंदर का पार्ट है जिसको उसको ठंडा करना है, उसको कितना ठंडा कर रहा है, कितना ठंडा कर रहा है बाई टेकिंग हाउ मच वर्क. तो मीन्स हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है, अकॉर्डिंगली कितना वो आउटपुट दे रहा है. और यहाँ जो अपना एक्सटर्नल वर्क है, दिस एक्सटर्नल वर्क इज नथिंग बट इनपुट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज आउटपुट. आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ठंडा होकर मिल रहा है, दैट इज आउटपुट. सो हियर आई कैन से कि कितना हम वर्क प्रोवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंगली कितना वर्क होगा, कितना ठंडा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? COP. क्या बोलते हैं? COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. यहाँ पे जैसे हम हीट इंजन में क्या डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी. बट हियर वी कैन नॉट डिफाइन एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है जिसको कोल्ड कर रहा है, यहाँ से तो हीट बाहर निकल जा रहा है ना. तो यहाँ से हीट आया देन इट इज गिवन आउट टू द एटमॉस्फेयर, हॉट रिजर्वायर. सो मोस्ट ऑफ केसेस में अगेन यहाँ पे हॉट रिजर्वायर क्या होगा? अपना सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, है ना. ओके, सो हियर वी डिफाइन व्हाट? COP. क्या डिफाइन करते हैं? COP. सो बेसिकली कंसेप्ट वाइज दिस इज सिमिलर लाइक आउटपुट बाय इनपुट. So I can write the COP beta, that is equal to output by input. Output by input. और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या होगा? मीन्स आउटपुट मुझे क्या चाहिए? रेफ्रिजरेटर से, मीन्स फ्रिज से, AC से मेरा एम क्या है? अगर मैं घर में AC लगाता हूँ तो मेरा एम क्या है? घर ठंडा होना चाहिए. फ्रिज का मीनिंग क्या है कि फ्रिज के अंदर का जो मटेरियल है इट हैज टू बी कोल्ड. तो मीन्स क्या होना चाहिए? आउटपुट मेरा यहाँ का है कि यहाँ से कितना हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है. सो दिस इज Q2 by input. Input is what? Work जो अपने को करना पड़ रहा है, external work done. So that is Q2 by W. Come on, external work done. Now what is work done? So here I know कि W external is nothing but means net work done is equal to what? Q1 minus Q2. Q1 minus Q2. So hence I can write beta is equal to Q2 से अगर divide किया, so this will be 1 upon Q1 by Q2, Q1 by Q2 minus 1. Q1 by Q2 minus 1. At the same time, we know कि Q1 by Q2, I can write this as T1 by T2. Q1 by Q2 is what? Is equal to T1 by T2. तो ये दोनों सेम है. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 upon T1 by T2 minus 1. 1 upon T1 by T2 minus 1. Hence I can write कि बीटा का फॉर्मूला जो आएगा coefficient of performance, that I can write is equal to Q2 by Q1 minus Q2. और आई कैन राइट, अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिलेगा T2 by T1 minus T2. T2 by T1 minus T2 like this. So this is the formula of what? Coefficient of performance. Coefficient of performance. Okay, now what is the relation between coefficient of performance means COP and efficiency? Is there is any relation between COP and efficiency? So to find the relation between efficiency and COP, what I can write कि efficiency का formula क्या है? What is efficiency? So efficiency is basically output by input. Output by input. और heat engine में जो output मिलता है, output क्या मिलता है अपना? Output is nothing but क्या? Work upon input is what? Heat supplied. And this I can write Q1 minus Q2 upon Q1, that is equal to I can write 1 minus Q2 by Q1, 1 minus Q2 by Q1. This I can write 1 minus T2 by T1, 1 minus T2 by T1. Hence this eta that can be written as T1 minus T2 upon T1. और अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल किया पलट तो 1 by eta is equal to T1 upon T1 minus T2. Okay, but what is T1
upon T1 minus T2, correct? Yes, everything is correct. 1 minus T2 by T1, eta 1 by eta is equal to, yes, like this. But what we want? We want T2 upon T1 minus T2. T2 upon T1 minus T2. So what we can do? So here if we do like this, 1 minus eta by eta is equal to 1 minus eta, means numerator minus denominator upon denominator. Hence we will get T1 cancel हो जाएगा, so this will be T2 upon T1 minus T2. Okay, but T2 upon T1 minus T2, this is nothing but beta. So hence I can write कि 1 minus eta by eta is equal to beta. This is the relation between coefficient of performance and efficiency. Coefficient of performance and efficiency. ये क्या बीटा का वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1? ऐसा भी क्वेश्चन माइंड में आते हैं. बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? तो बीटा कैन बी ग्रेटर देन 1 इफ, यस हो सकता है. COP का वैल्यू विल बी कैन बी ग्रेटर देन 1 इफ एफिशिएंसी इज लेस देन 50%. आप सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी का वैल्यू पुट करता हूँ से 40%, तो 1 माइनस 0.4 अपॉन 0.4, तो 1 माइनस 0.4 बाई 0.4 क्या आएगा? 0.6 बाई 0.4, दैट इज ग्रेटर देन 1. एंड दिस बीटा का वैल्यू क्या इक्वल टू 1 हो सकता है? यस, इक्वल टू 1 भी हो सकता है कभी, व्हेन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%. अगर एफिशिएंसी 50 आ गया, 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5 अपॉन 0.5, दैट इज इक्वल टू 1. एंड दिस बीटा कैन बी लेस देन 1 ऑल्सो. 1 कभी होगा इफ एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50%. तो अगर एफिशिएंसी का वैल्यू 50% से बड़ा होगा, 50% से ग्रेटर होगा, इन दैट केस बीटा विल बी लेस देन 1. तो बीटा मे बी लेस देन 1, मे बी ग्रेटर देन 1 और मे बी इक्वल टू 1. Whereas efficiency is always less than 1, always less than 1. That even cannot be equal to 1. Equal to भी नहीं हो सकता, greater भी नहीं हो सकता. Okay, so this is all about the refrigerator. क्या है ये? रेफ्रिजरेटर. हीट पंप में क्या होता है? अगर हम हीट पंप की बात करें, रेफ्रिजरेटर ने क्या किया? एक पर्टिकुलर रीजन को कोल्ड किया, वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट किया. बट हीट पंप में क्या होगा? वो पर्टिकुलर रीजन में क्या करेगा? वहां पे हीट देगा, मीन्स वो रीजन को गर्म करेगा, ऐसा बोल सकते हैं, हॉट करेगा. लाइक अगर बहुत ठंडी का टाइम है, वो अगर हम किसी रूम में सपोज एक मीटिंग ले रहे हैं, मुझे वो रूम अभी क्या चाहिए? बाहर बहुत ठंडा है, बट मुझे रूम को थोड़ा कोल्ड करना, हॉट करना है, हीटेड करना है. सो इन दैट केस वी विल यूज व्हाट? हीट पंप. तो हीट पंप क्या करेगा? हीट पंप मीन्स अंदर का जो भी ठंडा है मीन्स अंदर में जो भी ठंडे मीन्स कोल्डनेस होगा, उसको वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकेगा, सच दैट अंदर में क्या होगा? अंदर का पोर्शन हीटेड हो जाएगा. सो दैट इज अ कंसेप्ट यूज्ड इन व्हाट? हीट पंप, सिमिलर टू रेफ्रिजरेटर ओनली. बट अपोजिट क्या है? ये ठंडा करता है, वो गर्म करता है, ऐसा फंडा है. ओके, सो दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा. बीटा मे बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1. But efficiency is what? Efficiency is always less than 1. Efficiency is always less than 1. और आप ध्यान में एक और रख सकते हो अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप अनदर वर्ड में हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट हीट कैन नेवर फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. मीन्स लोअर टू हायर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं होगा, अपने आप फ्लो नहीं होगा. अगर आपको उसको लोअर से हायर पे करना है, मीन्स वी हैव टू डू सम वर्क. सो विदाउट सम वर्क हीट कैन नेवर फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेफ्रिजरेटर. नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर. ओके, थैंक यू.